Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. Today, I will explain you the topic sequence and series. आज मैं आपको explain करूंगा topic sequence and series जो कि chapter number 9th है class 11th NCERT का. This topic is very important as per the competitive exams of JEE Main and Advanced and also for the other competitive exams. Okay, आपको किसी भी competition exam की preparation करनी हो आपको सबसे पहले गो थ्रू होना पड़ेगा विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एनसीईआरटी और यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की जो स्टार्टिंग करूंगा वही एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा राइट. सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज. और आज का जो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज में वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो आफ्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाउ वी स्टार्ट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Geometric progression is our topic. Geometric progression. In short, we can say GP. In short, we can say GP. So now, what is geometric progression? हम कोई भी sequence ले लें A1, A2, A3 up to so on. Let till AN. तो ये कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस है. लेट दिस इज अ सीक्वेंस. तो ये सीक्वेंस जीपी में कब होगी? जीपी में होने के लिए सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट टर्म है दिस नॉट शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड इन जीपी व्हेन द टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म डिफरेंस दैट इज A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 and up to so on till an upon an minus 1. तो ये जो रेशो है this ratio should be constant. The ratio of the preceding term, the ratio of the term to the preceding term always remain constant. This R is constant. तो जब ये रेशो कांस्टेंट होगा then we can say the given sequence is in GP and this constant ratio is called common ratio. This R is called common ratio. Now, in journal, if we want to express the GP, तो in journal हम इसको कैसे express करेंगे? Let first term is small a. Common ratio is small r. Then we can write GP as AR square up to AR raised to the power n minus 1. This is called the geometric progression in which we have to given the first term small a और common ratio हमें small r given है. Then GP का यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा? GP को किस सीक्वेंस में लिखेंगे हम? AR square up to A raised to the power AR raised to the power n minus 1. This is basically called the GP. अब ये जो GP है this GP is either increasing or decreasing. Now this GP is increasing or decreasing. ये GP increasing कब होगी, decreasing कब होगी? तो देखिए increasing कब होगी? when A greater than 0 and R greater than 1 या फिर A less than 0 हो and R is less than 1 greater than 0. इन दोनों केसेस में ये जो GP होगी this GP is increasing GP. But if we will take the case A less than 0 for R greater than 1 or A less than 0 for R less than 1 greater than 0, in that case the GP is called the decreasing GP. Okay, so these are the cases in which we can say GP is increasing and GP is decreasing. And one of the case important also, that is if R less than 0. R क्या हो आपके पास? less than 0. In that case, GP is neither increasing, GP is
neither increasing nor decreasing. इस केस में क्या होगा, r लेस देन 0 के केस में न तो जीपी इंक्रीज होगी और न ही जीपी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जीपी कि कौन सी सीक्वेंस को हम जीपी सीक्वेंस बोलेंगे. ओके, जर्नल फॉर्म इसका क्या होगा, इसमें जीपी इंक्रीजिंग कब होगी, डिक्रीजिंग कब होगी, और कब जीपी न तो इंक्रीज होगी न डिक्रीज होगी. सो दिस कंसेप्ट हियर वी स्टडी. नाउ the next concept in the geometric progression is the nth term of GP. The next concept now we are going to study here, the nth term of GP. Nth term, or we can say journal term. Nth term or journal term, or we can say the last term of the GP. So nth term is denoted by Tn, or we can say An, or we can say the last term is small n. This is equal to ar raised to the power n minus 1. So this is called the nth term or the journal term of the GP. So from the starting, this is from the starting. जैसे हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ पर ar square up to ar raised to the power n minus 1. So हम यहाँ फर्स्ट टर्म से इसको लेके चल रहे हैं. ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग, इफ फ्रॉम द स्टार्टिंग वी विल सी दैट, तो हमारे पास जर्नल टर्म क्या हो जाएगी, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1, जिसको बेसिकली हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं. तो जब स्टार्टिंग से आप देखोगे इसकी जर्नल टर्म, देन कॉमन रेशियो क्या आएगा, r. बट फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, इफ वी वांट टू फाइंड द nth term of the GP from the end, so from the end the first thing you should know that the common ratio कितना होगा, 1 upon r. और फर्स्ट टर्म हम क्या लेके चलेंगे, स्मॉल l. देन इन दैट केस nth term from the end, nth term from the end will be equal to let we denote it by t n dash. यहां पर क्या आया था, a r raised to the power n minus 1, इधर आ जाएगा l into 1 upon r raised to the power n minus 1. So this is the nth term from the end of the GP. So here we understand the nth term or journal term of the GP. The next one. The next is sum of n terms of GP. Sum of n terms of GP. किसी भी जीपी के n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे. जीपी सीरीज हमने अभी क्या लिखी थी, ए आर स्क्वायर ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1. सो इसकी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, दैट इज प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1. सो n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. नाउ दिस सम इज इक्वल टू a इंटू 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r, or we can say that the sum will be equal to a r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. In both the cases you should know that डिनोमिनेटर में टर्म कौन सी आ रही है, डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है r minus 1, या फिर हम कह रहे हैं 1 minus r. So the condition we can apply that r should not be equal to 1, because r जैसे ही 1 के इक्वल हो जाएगा देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 होते ही जो n टर्म्स का सम है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज फॉर r इज नॉट इक्वल टू 1, the sum of n terms we can find out, but if r is equal to 1 then this sum will not exist. Okay, so this is the sum of n terms of the GP. Now इसमें ही हम एक स्पेशल केस लेते हैं, sum of infinite terms of GP. Sum of infinite terms of GP. Infinite terms of GP का मीनिंग हुआ when n tends to infinity. In that case, okay, तो जैसे ही n tends to infinity का केस होता है तो इसमें भी हम दो केसेस ले लेते हैं. फर्स्ट इज when mod r is less than 1 greater than 0. So इस केस में r raised to the power n हो जाता है tends to 0, और sum of infinity
of GP will be equal to a upon 1 minus r. जैसे r raised to the power n किसके टेंस हो जाएगा 0, बिकॉज r क्या है लेस देन 1, तो डिनोमिनेटर में होगा ये, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो दिस इज a अपॉन 1 माइनस r. बट when r is greater than equal to 1, in that case r raised to the power n tends to infinity, और इस केस में जो सम होगा वो भी कितना होगा infinity होगा. Okay, so this is the sum of infinite terms of GP, in which this formula is very important, that is sum of infinite terms of GP. हमें find out करना हो तो हम उसमें check कर लेंगे. If mod r is less than 1 or greater than 0, then we can say that the infinity term of GP will be equal to sum of infinity term is a upon 1 minus r. So जितने भी formulas हम ये study कर रहे हैं, जितने भी concept हम study करें, these all concepts are very important. The next concept, that is the selection of terms. जैसा हमने already AP में study करा है selection of terms, in the similar way in the GP also we should know that selection of terms. Example that in the GP हमें कितनी terms का selection करना हो, we have to select 3 terms. So 3 terms we will select as a upon r, a and ar. Okay, और इन सब में common ratio कितना आ रहा है, r आ रहा है common ratio. But when we want to select the 4 terms, in the selection of 4 terms we will take the sequence as a upon r cube, then ar, a upon r cube, then a upon r, then ar, then a r cube. तो जब भी हम 4 टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे जीपी में, इन दैट केस जो कॉमन रेशियो आएगा, दिस कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी. ओके, एंड द लास्ट कंसेप्ट इज नाउ इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. हम ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन स्टडी कर चुके हैं. इन द सेम वे यहां पर हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक मीन. नाउ इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज फर्स्ट. 2 नंबर्स हैं a और b, और हमने इसके बीच एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया, तो ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी, दिस सीक्वेंस इज इन जीपी. ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी, जीपी में. तो जीपी में होते ही जीपी का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, द टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म रेशियो, the term and preceding term ratio, and we will found that g square will be equal to ab. g square किसके इक्वल हो जाएगा, ab के. then the value of g will be equal to square root of ab. that is when we insert one geometric mean between a and b, then this type of sequence is in gp, and in that case the geometric mean will be equal to square root of ab. किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. ये ज्योमेट्रिक मीन तभी डिफाइंड होगा व्हेन ए एंड बी दे बोथ हैव द सेम साइन, ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बट दे बोथ हैव द अपोजिट साइन. इन दैट केस द ज्योमेट्रिक मीन विल नॉट बी एग्जिस्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. नाउ इफ वी वांट टू इंसर्ट, नाउ द नेक्स्ट वन, if we want to insert n geometric mean between a and b, then what will happen? If we want to insert n geometric mean, g1, g2, g3 up to gn between a and b, तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास किस में आ जाएगी, gp में. So here in this concept we want to understand when we insert n geometric mean between a and b. तो देखिए n टर्म्स तो यही हो गई हमारे पास टोटल, a और b भी हैं, तो b कौन सी टर्म हो गई, n प्लस 2th टर्म. b यहां पर कौन सी टर्म हो जाएगी, n प्लस 2th टर्म, बिकॉज n ज्योमेट्रिक मीन हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी यदि हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो b कौन सी टर्म हो गई, n प्लस 2th टर्म. ओके, एज वी नो दैट कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1. ऑलरेडी हमने स्टडी किया है अभी. ओके, यहां पर nth टर्म कौन सी है, b, बट b कौन सी टर्म है, nth टर्म नहीं है. ये कौन सी टर्म है, n प्लस 2th टर्म. यदि सेम फॉर्मूले को हम n प्लस 2th टर्म के लिए लिखेंगे
तो सेम फॉर्मूला n+2h टर्म के लिए क्या आ जाएगा, a r रेज टू दी पावर, यहाँ पर n था बट अब हमारे पास क्या है n+2, सो n+2 minus 1, so this will be a into r raised to the power n+1 and n+2h term क्या है, small b, so small b is equal to a into r raised to the power n+1. In that case r raised to the power n+1 किसके इक्वल आ जाएगा, b upon a के, so r will be equal to b upon a raised to the power 1 upon n+1. So this is the common ratio we find out, that is when we insert n geometric mean between a and b, in that case the common ratio will be equal to b upon a raised to the power 1 upon n+1. तो इस केस में common ratio किसके इक्वल हो जाएगा, b upon a 1 upon b upon a raised to the power 1 upon n+1. और इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से ये जो हमने r फाइंड आउट किया है, इस r से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और nth ज्योमेट्रिक मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप इसको कंपेयर करें जीपी सीक्वेंस से, तो g1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, द वैल्यू ऑफ g1 विल बी a इंटू r. जब आप a इंटू r करेंगे तो r की वैल्यू कितनी है, b अपॉन a रेज टू दी पावर 1 अपॉन n+1. ऐसे ही हम g2 फाइंड आउट करेंगे, g2 आएगा a r स्क्वायर, that is a into b upon a raised to the power 2 upon n+1. In the similar way, if we will find the n geometric mean, then it will be a into r raised to the power n, and this will be a into b upon a raised to the power n upon n+1. So by the help of this common ratio हम बहुत ही easily n geometric mean की values find out कर सकते हैं. Now the very important result, if we multiply this all n geometric mean, जितने भी geometric mean है इन सबको multiply कर दें, then क्या आएगा, देखिए आप इन सबको multiply करेंगे तो small a कितने टाइम multiply होगा, small a multiply होगा n times, तो small a की पावर तो हो जाएगी n, और b अपॉन a रेज टू दी पावर, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए सेम बेस है b अपॉन a, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ऐड. पावर ऐड होते ही हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n+1 a रेज टू दी पावर n b अपॉन a. यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला फाइंड आउट अप्लाई करेंगे 1 + 2 + 3 अप टू n में, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा n इंटू n+1/2, और ये n+1 ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पर, राइट. तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a रेज टू दी पावर n b अपॉन a रेज टू दी पावर n/2. यहाँ पर आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और वी कैन अप्लाई दैट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, a रेज टू द पावर n इंटू b अपॉन a रेज टू द पावर n/2. फाइनली यू कैन राइट डाउन इट लाइक दैट. That is, it can be written as a b upon a raised to the power half whole raised to the power n. अब a 1/2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा रूट ए बी रेज टू दी पावर n. तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू दिस रूट ए बी. क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अभी हमने फाइंड आउट किया था. तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b रेज टू द पावर n. तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर हो जाता है क्या, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन. So this is the theoretical part, my dear students, that is what is the geometric progression,
what is the nth term of geometric progression, how we can say the given GP is increasing or decreasing or neither increasing nor decreasing, और sum of n terms of GP हम कैसे find out करेंगे, sum of infinite terms of GP कैसे find out करेंगे, कोई भी दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, एन ज्योमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करने हो तो हम किस तरीके से ये अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी जस्ट स्टडी द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल दीज कंसेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स.